Hello students, my name is Vijay Kumar Singh from Department of Information Technology. In this video, I am going to discuss the Python programming lab experiments. Objective of today's lab experiment is write a program to demonstrate list and tuple in Python. Let us move in the VS Code. Okay, in the VS Code, I am going to create a file with .py extension. Use the command touch and then file name list and tuple list tuple dot py list tuple dot list underscore tuple dot py. This is a simply file name and list tuple file is created. Now I want to open this file. Use the command code. You can write the code over here. List collection in Python. First of all, what is a list? List is an ordered collection. List is an ordered collection in which ordered we are inserting element in same order elements will process. That means जिस order में हम element को हम insert करते हैं same order में हम element को क्या कर सकते हैं process कर सकते हैं किसमें in list में, right? For example, now I am creating a list L1 which contain the element like this 10, 20, 30, 40, right? List L1 equal to हमने क्या किया लिस्ट क्रिएट किया L1 जिसमें कितने एलिमेंट है 10, 20, 30 एंड 40. अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो सेम ऑर्डर में क्या होगा ये प्रिंट होगा इसका जो है कि ऑर्डर चेंज नहीं होगा. सो इट इज कॉल्ड लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, राइट? लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड collection. Now I want to print list elements is L1. Then Control S, execute this program. Okay. Now I want to execute this program. Write the Python, then file name. File name is a list underscore tuple, then enter. Okay. It will print 10, 20, 30 and 40. So you can say that list is an ordered collection. And list can store duplicate and heterogeneous elements. List can store duplicate and heterogeneous element. For example, L2 equal to 10, 20, 10, 30, ABC. Then print
elements is L1. Control S, then execute this program. Okay, it will print 10, 20, 10, 30 and ABC. So we can say that list can store duplicate and heterogeneous elements. So you can say that list can store duplicate and heterogeneous elements. यहाँ पे क्या है 10, 10, 10 जो है डुप्लीकेसी है 10 का, तो हम ये बोल सकते हैं लिस्ट कैन स्टोर द डुप्लीकेट एंड हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स. ओके, नाउ in the list we can process the element using the indexing and slicing. In this list, okay, indexing and slicing. For example, we have a list 10, 20, 10, 30 and ABC. We want to print the element 10. Then we will use the index value of 10. What is the index value of 10? Index value of 10 is 0, 1, 2, 3 and 4. Suppose we want to print the 10, then we will use the index value of 10 as 0. Then now I want to print the 10, so we can write print the first element of list is L1, then index value of first element will be 0, then it will print the first element. Then now go to enter. Yeah, first element is 10. Okay, first element of list is element of list is 10. Suppose you want to print the last element of the list, then we will use the negative indexing value -1. Last element of list is Control S, it will print last element of list is the A, B and C. See over here in the list, first element of list is 10, that index value is 0, and last element of list is ABC, index value is the -1, right? Suppose I want to print the length of list, then print, use the simply len function, len of L1. Length of string is what? Okay, it will print the length of string. Length of string is the 5. Now length of string is the 5.
Okay, now what is a list slicing? Syntax of list slicing is the lower bound colon upper bound. Lower bound colon upper bound. Lower bound includes and upper bound excludes. That means suppose we have a list L equal to 10, 20, 30, 40, 50. This is a list 2, L2. Okay. Suppose I want to print the element 20 and 30, 40. I want to print only the element of list 20, 30 and 40. What we will do? We will use the list slicing concept. Means suppose I want to print 20, 30 and 40. Then print L2 20, 30 and 40. What will be the lower bound? Lower bound will be 1, 2, 30 तक हमें प्रिंट करना है, देन 40 तक प्रिंट करना है. देन what will be the lower upper index value of 40? Index value of 40 is the 3. Then we will use the 4. Because as you know that upper bound will be exclude. That means upper bound जो हम देते हैं उसमें upper bound -1 इंडेक्स तक ही प्रिंट होता है. स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और प्रिंट कहाँ से करेगा? 4 - 1 3 तक ही प्रिंट करेगा. मीन्स इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 मीन्स स्टार्ट होगा 1 से लेके स्टार्ट होगा 2 and 3 तक ही प्रिंट करेगा. राइट. ये कितना तक प्रिंट करता है? जो हम अपर बाउंड देते हैं -1 इंडेक्स तक ही प्रिंट करेगा. देन इट विल प्रिंट द 20, 30 and 40 ओनली. राइट. इट विल प्रिंट द 20, 30 and 40 only. Control S, save. Okay. The list value is the 20, 30 and 40. Right. This is the concept of slicing. Now suppose, what do we mean by if we print L2 :1 अगर हम जो कि लोअर बाउंड की केवल देते हैं, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स हम देते हैं, देन कॉलन के बाद जो कि हम कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं यहाँ पे. डेट मीन्स क्या होगा? ये जो कि इंडेक्स वैल्यू 1 से लेके कंप्लीट जितने भी एलिमेंट होंगे सारे प्रिंट करेगा. राइट. डेट मीन्स 1 से लेके ऑल एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा. ओके. एलिमेंट print element from index 1 to all. एक से लेके जो भी सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा. इज दिस. कंट्रोल एस, सेव, रन दिस प्रोग्राम. हमने क्या किया? प्रिंट किया 1 से. इंडेक्स वैल्यू 1 से लेके और 20, 30 and 40 and 50. इंडेक्स प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? इंडेक्स वैल्यू 1 से. इंडेक्स वैल्यू 1 पे क्या है? पे कौन सा एलिमेंट है? 0, 20, 30, 40 and 50. ये जो है कि सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा. सपोज
अगर हम जो है कि हम ये केवल प्रिंट करना चाहते हैं स्टार्टिंग से जो है कि 3 एलिमेंट प्रिंट हो, बाकी एलिमेंट प्रिंट नहीं हो, देन वी विल यूज द print the elements from index 0 to 4. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स 0 से लेके हमें क्या है कहाँ तक प्रिंट करना है, मतलब 10, 20 एंड 30 तक प्रिंट करना है. देन विल गिव द अपर बाउंड एज 3. तो क्या होगा, 3 तक प्रिंट करेगा, मीन 3 - 1 2 तक प्रिंट करेगा, 0 1 2 मीन 10, 20 एंड 30 प्रिंट करेगा. कंट्रोल एस एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. इट विल प्रिंट 10, 20 एंड 30. ये क्या होगा, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट. सपोज हम इंडेक्स वैल्यू कुछ ऐसे देते हैं, -5 से -1. ये क्या प्रिंट करेगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, -5 से -5 से लेके -1 तक प्रिंट करेगा. दैट मीन -5 इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग वैल्यू इधर से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3 -4 एंड -5, राइट. -5 से स्टार्ट करेगा प्रिंटिंग, मीन -5 से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, मीन्स 10 प्रिंट करेगा. कहाँ तक प्रिंट करेगा, -1 मीन्स 10 प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा, 30 प्रिंट, मीन्स -5 से लेके -1 तक प्रिंट करेगा. मीन्स ये सारे एलिमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, राइट. देन ओके, ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, माइनस सारे एलिमेंट नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, 10, 20, 30 एंड 40, बिकॉज एज यू नो डेट अपर बाउंड -1 वैल्यू इंडेक्स वैल्यू तक ही प्रिंट होता है. अपर बाउंड जो भी दिया होता है उसमें -1 करने का जो वैल्यू आएगी उतने वैल्यू के इंडेक्स वैल्यू तक ही प्रिंट करेगा. मीन्स -1 विल बी -2 मीन्स -2 इट विल प्रिंट द 10, 20, 30 एंड 40, यहाँ तक प्रिंट करेगा, राइट. नाउ कंट्रोल एस एंड सेव. ओके, इट विल प्रिंट 10, 20 एंड 30 एंड 40, right. Now I am going to discuss some functionality, list functionality in Python. Okay, some list functionality like this. List functionality like insert, delete, sort, reverse. For example, we have a list L3 equal to 10, 20, 30, 40. टेन 20, 30, 40, 20 लिखते हैं. ओके, 10, 20, 30 एंड 20. देन वी वांट टू प्रिंट द लिस्ट. तो क्या वो प्रिंट करेगा, 10, 20, 30 प्रिंट करेगा. सपोज वी वांट टू ऐड another element in the list, then we will use the append function. Then print append the value 50 in list is
Okay, first function, I'm going to use first function, append function, right? Suppose we have a list L3 equal to 10, 20, 30, 40, right? We have a list which contain 4 elements 10, 20, 30 and 40. Suppose you want to add element 50 in list, so we need to use the append function. Then L3 dot append, then value, append value 50. Then now print the list elements after append, after add 50 in list is L3. Control S, save and run this. Now as you see that 10, 20, 30, 40 and 50 is added in the list L3, right? अपेंड फंक्शन का जब हम यूज करेंगे तो जो भी एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो क्या होगा, लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है. सपोज यू वांट टू ऐड द एलिमेंट इन स्पेसिफिक लोकेशंस, देन वी नीड टू डू, use the insert function. Then we will use the insert function to insert a element in the specific location. Suppose I want to add 20, I want to add 20 or 50 at the position of after 20, then what we will do, मान लो कि हमें इस किसी इन बिटवीन किसी भी लोकेशंस पे हमें ऐड करना है, देन वी विल यूज द इंसर्ट फंक्शन. देन L3 डॉट इंसर्ट, देन 2, मान लो मैं 70 ऐड करना है, 70. डेट मीन्स इसमें क्या होगा, फर्स्ट 2 का मीनिंग क्या है एंड सेकेंड का मतलब क्या है, ये क्या है इंडेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स पोजीशन, एंड सेकेंड वन इज द वैल्यू विच यू वांट टू ऐड इन द लिस्ट. फर्स्ट 2 is represent the positions, index position, and second is the value. हमें क्या करना है, सेकेंड पोजीशन पे हमें क्या करना है, 70 को ऐड करना है. देन प्रिंट लिस्ट, देन प्रिंट लिस्ट आफ्टर adding 70 at index 2. and L3. Index 2 means what, 0, 1 and 2, 30 और 20 के बीच में ऐड होगा ये. Then we'll print. Okay, सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या होगा, इंसर्ट हो गया 70, 10, 20, 70, 30, 40 एंड 70. देन अगर हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है. हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशंस पे अगर हमें जो है कि किसी वैल्यू को इंसर्ट करना है, देन वी विल यूज द इंसर्ट फंक्शन, राइट.
नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज पॉप फंक्शन। हम पॉप फंक्शन का क्या रोल होता है? पॉप फंक्शन, suppose you want to delete the last element from the list, then you will use the pop function. L3 use the pop function. pop function क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा? डिलीट करेगा। देन प्रिंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, then print the list after pop, then it will print L3। ये क्या करेगा? हमारा जो कि लास्ट एलिमेंट क्या है? लास्ट एलिमेंट 40 will be deleted from the list। ओके सॉरी 50 एलिमेंट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द पॉप एलिमेंट। जो क्या होगा? लास्ट एलिमेंट को ही क्या करेगा? डिलीट करेगा, राइट। लास्ट अपेंड फंक्शन लिस्ट के जो कि लास्ट में जो है कि क्या करता है? ऐड करता है किसी वैल्यू को जिसको हम ऐड करना चाहते हैं यूजिंग द अपेंड फंक्शन। अगर हम स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे ऐड करना चाहते हैं देन वी विल यूज द इंसर्ट फंक्शन। अगर हम पॉप फंक्शन यूज करते हैं देन क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट को, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा? पॉप करता है, राइट। सपोज वी वांट टू डिलीट द स्पेसिफिक लोकेशंस, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को जो है कि पोजीशंस वैल्यू को हमें क्या करना है? डिलीट करना है। देन वी विल यूज द इंडेक्स वैल्यू लाइक दिस। हमें क्या करना है? L3 एलिमेंट्स का जो है कि L3 डॉट पॉप, हमें इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट है उसको हमें डिलीट करना है। देन वी विल यूज द इंडेक्स वैल्यू एंड देन आफ्टर प्रिंट डिलीटिंग द वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स 3 you will print the list L3 हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। अब देखो इस लिस्ट में क्या था? थर्ड पोजीशन में 0 1 2 एंड 3। थर्ड पोजीशन पे क्या था? 30 था। 30 विल बी डिलीटेड, 10 20 70 एंड 40। तीसरे पोजीशन पे जाए, इंडेक्स वैल्यू हमने 3 दिया था तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू होगा उसको क्या करेगा? डिलीट कर देगा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टपल। व्हाट इज टपल? tuple, suppose tuple is an ordered collection. Tuple is an ordered collection. Tuple is an ordered collection, right? I want to create a tuple t1 equal to, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा? एम्प्टी टपल है। अगर हमें एलिमेंट ऐड करना है 10 20 30 40, राइट। अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? प्रिंट t1, देन इट विल प्रिंट द एलिमेंट ऑफ टपल। क्या होगा? प्रिंट हो गया टपल एलिमेंट। टपल एलिमेंट्स, टेन 20 30 एंड 40, राइट। टपल एलिमेंट्स हो गया। अब हमें क्या करना है? इन द टपल वी कैन स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट और नॉट। लेट मी चेक। डुप्लीकेट एलिमेंट हमें ऐड कर सकते हैं, नहीं कर रहे सब। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टपल।
tuple, which is tuple is an ordered collections. Tuple is in a ordered collection. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं parenthesis से. Suppose I am going to create a tuple T1 which contains the element 10, 20, 30 and 40. Now I want to print the tuple element then T1. It will print the tuple element. Then execute this program. Python dot list tuple. It will print the 10, 20, 30 and 40, right? Suppose tuple can also contain A, B, C. So you can print this one, right? Suppose I want to access the element, I want to print the last element of the tuple, then we will use the index value, then print last element of tuple. इंडेक्स वैल्यू लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं -1, राइट? लास्ट एलिमेंट ऑफ टपल इज प्रिंट हो गया ABC, राइट? हम इसमें भी स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम जो कि 20 से लेके और इंडेक्स 0 से लेके 20 से लेके सारे स्ट्रिंग्स को हमें प्रिंट करना है, हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्लाइसिंग. जी 20 to all, 20, 30, 40 एंड ABC सभी एलिमेंट्स क्या होगा, हमने क्या किया प्रिंट कर सकते हैं. स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं इसमें टपल में. सपोज यू वांट टू काउंट द occurrence of element in tuple. Suppose we have a element 10, 20, 10, 30, 10, 30, 40, राइट? सपोज यू वांट टू प्रिंट द ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब कितने टाइम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट में अवेलेबल है उसको हमें प्रिंट करना है. देन वी विल यूज द फंक्शन काउंट फंक्शन. देन सपोज आई वांट टू प्रिंट occurrence of element of elements in tuple. सपोज हमें 10 को फाइंड आउट करना है, 10 कितना टाइम जो है कि अवेलेबल है इस लिस्ट में. देन यू विल यूज द काउंट फंक्शन t1 डॉट काउंट of 10 and we will return. Okay, 10 will
occur 3 times in the list. इसमें कहा है 1 2 हाँ 1 T1 में वो 1 2 3 3 टाइम 10 अवेलेबल है. सपोज हमें जो ऑकरेंस पता करना है, ऑकरेंस ऑफ 10. ओके, सपोज हमें ऑकरेंस पता करना है 20 का. देन यू विल यूज ऑकरेंस ऑफ 20. और 21 टाइम अवेलेबल है लिस्ट में. लेट मी चेक. ओके 21 टाइम अवेलेबल है. 30 को हमें प्रिंट करना है. देन क्या होगा, ऑकरेंस ऑफ 30 इज शुड प्रिंट 2 टाइम्स. 30 को अगर हम का ऑकरेंस अगर चेक करना है, देन इट शुड प्रिंट 2 टाइम्स. ओके 2 टाइम्स. Okay, thank you. Okay, now what is the main difference between list and tuple? List is a mutable and tuple is a immutable. That means list is mutable means we can modify after creation. So लिस्ट को हम क्या करते हैं, क्रिएशन के बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. बट टपल इज इम्यूटेबल, वी कांट मॉडिफाई आफ्टर द क्रिएशन. देयर आर द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल. ओके, थैंक यू.